Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we will be studying a very interesting chapter that is a hero. So let's just begin with this chapter. So the title of our chapter is a hero, right? So about this chapter, देखिए आर के नारायण जो है, he is the writer of the story. This R K Narayan is a very famous author, and you must also have heard about lot about this person. His full name is Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami, and he is an Indian novelist and a writer best known for his work in fictional South Indian town of Malgudi. Right? Basically, these Iyers, they are basically Telugu or Tamil people, so they are from South only, right? And he is well-known novelist, the one who writes the novel. Apart from that, he is also a best-known writer. This is the superlative degree of adjective, means इनका comparison अगर लोगों से किया जाए तो he is best known, right? And ये South Indian town of Malgudi. You must have heard about Malgudi days और मालगुडी डायरीज करके बचपन में मैगजीन्स आया करती थी, जिसके अंदर ये एक सीरियल भी आया करता था, लाइक आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ अ comic stories that used to appear on Cartoon Network. If you have gone through this story is all about a Swami who becomes an accidental hero and pride of his family. उनकी फैमिली के बहुत ही ज्यादा हीरो बन गए एक्सीडेंटली, मतलब एकदम अचानक से. एंड एज अ यंग बॉय स्वामी जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल या फिर कॉलेज या फिर वर्किंग हार्ड फॉर एनीथिंग. ही डोंट लाइक ऑल दीज, राइट? एंड देखिए लाइक का डिसलाइक, डिसलाइक का डिसलाइक, जहाँ पे भी ये वर्ड डी आ जाता है, दिस इज ऑल फॉर नेगेटिव, राइट? दिस इज अ नेगेटिव वर्ड. सो लेट्स जस्ट और स्वामी इवेंट्स टुक एन एक्सपेक्टेड टर्न. जो स्वामी के इवेंट्स हैं उनकी लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है. Father looked over the newspaper. He was reading under the hall lamp. देखिए उनके फादर जो हैं, he was just reading the newspaper under the lamp, मतलब लैम्प के नीचे हॉल में बैठ के पढ़ रहे हैं. एंड स्वामी listen to this news. उसके फादर क्या कह रहे हैं? स्वामी just listen to this news, an act of bravery of a village lad. Lad means boy. Who while returning home by the jungle path, जो कि अपने जंगल के रास्ते से वापस आ रहा था, and he came face to face with the tiger. Face to face with the tiger means it was all horrible in of that time. Paragraph described the fight, the boy and the fight of the boy and the tiger. ठीक है? And he flight up a tree, और उसने ट्री के ऊपर एक जंप किया. Where he stayed for at least half a day. पूरे दिन का आधा दिन उसने वहीं स्पेंड किया. And until some people came that way and kill the tiger, और फिर कुछ लोग आए और he just killed the tiger. Now आफ्टर रीडिंग इट फादर लुक्ड एट स्वामी, और ये सब पढ़ने के बाद उसके फादर स्वामी को बहुत आराम से फिक्स्डली मीन्स बहुत ही कंटिन्यूअसली उसको देख रहे हैं, आस्किंग व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इस बात से क्या कहना चाहते हो? Swami said, I think he must have been a very strong and a grown up person, that he must be a very strong person. Not all boys are, सारे boys ऐसे नहीं होते हैं. How could a boy fight with a tiger? How it's possible कि एक boy जो है वो tiger के साथ fight कर सकता है? Now, you think you are wiser than the newspaper? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा जानते हो न्यूज़पेपर से ज्यादा? Father sneered. Father sneered means वो ऐसे घुर्रा कर बोले. A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. Coward means डरपोक. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कावर्ड. ब्रेव का ऑपोजिट है. ये बोल रहा है कि एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो कुछ भी कर सकता है, और अदर पर्सन कैन बी अ कावर्ड मीन्स डरपोक, राइट? वेराज अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉ. किसी के पास तो ऐसा हो कि बहुत ही ज्यादा कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, बट इफ ही हैज द करेज टू डू एनीथिंग देन ही कैन डू एवरीथिंग. तो उसके पास कितना भी ताकत है, साहस है, बल है, ही कैन डू एनीथिंग. तो करेज इज एवरीथिंग. करेज क्या है? सब कुछ है. स्ट्रेंथ, एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. एज नहीं है ज्यादा जरूरी, राइट? सो स्वामी डिस्प्यूटेड दिस थ्योरी. डिस्प्यूटेड मीन्स उसको रिजेक्ट कर देना. हाउ कैन इट बी फादर? ये कैसे हो सकता है पापा? सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ द टाइगर शुड अटैक मी? अगर टाइगर ही मुझे अटैक कर दे तो मैं क्या करूंगा, राइट? बी स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? आप ताकत को तो छोड़िए, क्या आप ये मेरे को प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास करेज है, जज्बा है कुछ करने का? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस रूम. मैं देखता हूँ कि आपके पास कितना करेज है कि यू कैन स्लीप इन माय ऑफिस टुनाइट अलोन, राइट? A frightful proposition. What do you mean by proposition? That means a proposal. Swami thought he had always slept beside his granny in the passage. वो हमेशा अपनी ग्रानी के साथ सोया है.
beside मीन्स उनके पास, और इसी beside के आगे अगर हम s लगा देंगे that means in addition to, उसके अलावा भी, right? हमेशा दादी या फिर नानी के पास सोया है, and any change in this arrangement kept him trembling. अगर ये चीज चेंज हुई तो trembling means very shaking, डरपोक, राइट? एंड अवेक ऑल द नाइट, कि डर डर के मारे मैं सारी रात क्या होगा, जागा रहूंगा. एंड ही होप्ड एट फर्स्ट, देन हिज फादर वाज ओनली जोकिंग. तो सोचा, फादर, व्हेन हिज फादर वाज लाइक, तो ऐसा लग रहा था कि इसके पापा सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं, ही इज जस्ट जोकिंग. ही मम्बल्ड वीकली, मम्बल्ड मीन्स मन में कुछ ना कुछ बोलना. यस, आई विल ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, मैंने बात को पलटने की कोशिश करी, एंड सेड वेरी लाउडली with a great deal of enthusiasm. What is enthusiasm? Enthusiasm means zeal, zest, jazba. This word is very, very, very important, and it came across in any unseen passage. We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. हम ये चीज को मान जाएंगे, and we are buying grand, great. We are buying brand new bats. नए बैट और बॉल हम खरीद रहे हैं. Our captain has asked me to tell you कि मेरे कैप्टन ने मेरे को आपको बताने के लिए कहा है. Now we will see about it later. फादर कट इन, पापा ने बात को काट के बोला बाद में देखेंगे इस चीज को. यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, सबसे पहले तो तुम मुझे अकेले सोकर दिखाओ. स्वामी रियलाइज द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि अब बात उसके सर के ऊपर से जा चुकी है. अब इट्स इम्पॉसिबल कि मैं पापा को मना कर पाऊंगा, और ये क्या हो गया, एक चैलेंज जैसा हो गया. नाउ इट्स अ प्लेन कमांड, एकदम पापा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड दे दिया है. He know his father tenacity at such moment. Tenacity means वो अपने जानता है अपने पापा की firmness. Tenacity means firmness, बात पे अड़े रहना. आप एकदम टिनेंट हैं अपने गोल के लिए. राइट नाउ, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द मंथ आई विल स्लीप अलोन. पापा को बोल दिया फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द मंथ कि चलो अगले महीने की फर्स्ट को मैं अकेले सोऊंगा, बात को टालने के लिए. नो, यू मस्ट डू इट नाउ, इट्स डिस्ग्रेसफुल, कि ये बहुत ही ज्यादा शेमफुल बात है, प्लीज आपको अभी करना होगा. It's disgraceful. You are sleeping sometimes before you are sleeping beside your granny or mother like a baby. क्या तुम बच्चे हो अपनी मम्मी और अपनी दादी के या फिर नानी के आसपास ही सोते हो? You are in a second grade, you are in second standard, and I don't like all the way you are being brought up. कि आपको कैसी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ये पापा ने बोला. And looked at his wife who was rocking the cradle, कि कौन ऐसे बच्चों की तरह इसको सुलाएगा. क्रेडल इज अ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ, आप देखते हैं छोटे बच्चों का क्रेडल होता है जिनके अंदर उनके हम बिठा के घुमाते हैं. तो व्हाई डू यू लुक एट मी एंड व्हाई यू से इट, मेरे को क्यों कह रहे हो मेरी तरफ देख के. ही शी आस्क्ड, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मैं बॉय के बारे में ज्यादा नहीं जानती. नो नो, आई डोंट मीन यू, फादर सेड. फादर कह रहे मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ. इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, टेल हर सो दैट यू डोंट लुक एट मी, शी सेड. He's saying that if you think that your mother is spoiling to you, मतलब वो बच्चे को बिगाड़ रही है, then just don't look at me, and turned away, और वो साइड हो गए. Right now, Swami's father said gloomingly. Gloomingly means very sadly. Gazing at the newspaper on his lap. लैप पे उन्होंने अपनी गोद में न्यूज़पेपर को रखा हुआ है, उसको बहुत बुरी तरीके से गेज कर रहे हैं, मीन्स देखे जा रहे हैं उसे. स्वामी रोज साइलेंटली, राइज का रोज, दिस इज द पास्ट फॉर्म, राइट? साइलेंटली मीन्स वो वहां से उठा चुपचाप, एंड टिप टॉप्ड अवे टू द बेड इन द पैसेज, और चुपचाप अपने बेड के पास चला गया. नाउ ग्रैनी वाज जस्ट सिटिंग अप इन हर बेड. ग्रैनी वहां पे बैठी हुई थी, एंड शी जस्ट रिमार्क, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुमको नींद आ रही है? डोंट यू वांट अ स्टोरी, क्या तुम्हें स्टोरी नहीं चाहिए? स्वामी माइल्ड made wild gesticulations and to silence Granny. What do you mean by gesticulation? Means the gestures he is giving to his nanny. अपनी नानी को जो भी जेस्चर्स दे रहा है, बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग. बट उस लेडी ने कुछ भी नहीं देखा. तो स्वामी जस्ट थ्रू हिमसेल्फ ऑन द बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस. वो जस्ट लेटा, अपने मुंह पे ब्लैंकेट किया, एंड ही जस्ट स्लेप्ट. नाउ ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस, अपना मुंह कवर करने की जरूरत नहीं है. आर यू रियली फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें सच में नींद आ रही है? स्वामी लर्न ओवर एंड विस्पर्ड, प्लीज जस्ट शट अप ग्रैनी, प्लीज आप चुप हो जाइए. डोंट टॉक टू मी, मेरे से बात मत करिए, एंड डोंट लेट एनीवन टू जस्ट कॉल मी, और किसी को बोलिए कि मेरे को कोई भी ना बुलाए. इवन इन द हाउस इज ऑन फायर, अगर घर में आग भी लग जाए, देन डोंट डेयर टू कॉल मी. ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम.
इफ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, अगर मैं इस वक्त नहीं सोया तो मैं मर जाऊंगा. He just turned over and curled and snored under the blanket until his blanket was pulled away. जब तक उसके सर के ऊपर से ब्लैंकेट नहीं हटाया तब तक he was like just turn over, अपना मुंह उधर किया, कर्ल किया और अपने सर पे वो रख के खराटे मार के he was sleeping. What do you mean by this snoring? Means खराटे मारना, right? Now, presently, father came and stood over him. पापा आ गए उसके पास और उसके सामने खड़े हो गए. स्वामी, just get up. He said, just get up. He looked like a apparition in the semi-darkness of the passage. What do you mean by apparition? Means भूत जैसे लगने लगे, ghost. वो एकदम अंधेरे में उसको घोस्ट जैसे लगने लग गए. विच वॉज लिट बाय अ टोन ऑफ लाइट फ्रॉम दी हॉल. हॉल की लाइट जल रही थी, रूम की लाइट ऑफ हो रही थी, तो इट सीम्स कि जैसे वो उनके लिए घोस्ट है. एंड स्वामी स्टर्ड एंड ग्रोन्ड एज इट इफ इज इन स्लीप, कि वो इतना ज्यादा अपने आप को खुद को दिखा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में है. एंड ही इज काइंड ऑफ स्लीपिंग. अगेन हिज फादर सेड, Swami, just get up. And this granny also pleaded, why do you disturb him? कि तुम इसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? वो किसको कह रही है? स्वामी के पापा को बोल रही है. Get up, Swami, he said for the fourth time. His father is scolding him and saying, just please get up. Father just rolled up his bed. उसका बेड को ऐसे हिलाया and took it under his arm and said, just come with me. उसको उठाया और बोला कि मेरे साथ आओ. Swami just looked at the granny. Granny की तरफ देखने लगा and he was totally hesitated, means he was not able to speak for a moment and just followed his father from the to the office room तक उसको follow किया. Now on the way he threw a look of appeal at his mother and she said, why do you take him to the office room? उसकी mom, she is also looking and she is saying कि उसको office room में आप क्यों लेकर जा रहे हो? He can sleep in the hall. वो hall में भी सो सकता है, I think. But his father saying, I don't think so. मुझे नहीं लगता है. Swami just slunk behind with him with a bowed head. Means अपने पीछे पीछे वो क्या कर रहा था? छुप रहा था. Right? Let me sleep in the hall, father. Swami pleaded. Swami said, this please allow me to sleep in the hall. Your office is very dusty. कि आपका ऑफिस कैसा है? बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वाला है. एंड देयर कैन बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, कि आपकी किताबों के पीछे शायद कहीं बिच्छू भी हो सकते हैं. देयर आर नो स्कॉर्पियंस. हिज फादर इज सेइंग, नो, देयर आर नो स्कॉर्पियंस. यू जस्ट स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक. अगर आपको पसंद आ रहा है, यू कैन स्लीप ऑन द बेंच. आई कैन गिव यू अ लैम्प बर्निंग इन माई रूम, कि मैं तुमको एक लैम्प दे सकता हूँ. जस्ट लाइट अप ओवर देयर. नो, यू मस्ट लर्न नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. तुम्हें डर अंधेरे से डर नहीं लगना चाहिए. यू जस्ट लर्न. इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. ये सिर्फ क्या है? एक बात है सिर्फ आदत डालने की. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. कल्टिवेट मीन्स इनकलकेट इन योर सेल्फ विद गुड हैबिट. As you can see, his father is just giving him in a lamp and he is in his office, right? And he is lying on a bench, mommy, and this is his father right now. Will you at least leave the door, please? कि आप क्या एकदम डोर को खोल के जा सकते हैं? All right, but promise that you will not roll up your bed and go to the granny side at night. कि तुम प्रॉमिस करो कि रात को अपना बोरिया बिस्तर उठा के अपनी दादी के पास नहीं जाओगे. If you do it, mind you, I will make you the laugh talking of your school. मैं तुम्हारी ये बातें स्कूल में बता दूंगा और सब लोग बच्चे तुम्हारे ऊपर मजाक बनाएंगे. They will make fun of you. Now, Swami felt cut off from the humanity. Swami is feeling as if the humanity have already lost from my father's mind. He was totally pained and he was feeling very angry. उसको बहुत गुस्सा आ रहा था. He did not like this train of the cruelty he saw in father's nature. उसके पापा में जो cruelty वाला nature आ रहा था, he was not at all liking all this kind of behavior. He hated the news. He hated the newspaper for printing the tiger story. Actually, he was just remembering the tiger story that his father was telling one day. So he just hated कि पता नहीं अखबार में ऐसी खबरें क्यों छापते हैं जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स they just show bad behavior to us. So he wished that the tiger hadn't spared the boy. कि काश टाइगर ने बॉय को स्पेयर ही नहीं किया होता, खा गया होता. Who did not appear to be a boy after all, but a monster. जो कि एक बॉय नहीं, एक मॉन्स्टर की तरह उसको मार दिया होता. Now, as the night advanced, जैसे जैसे नाइट हुई, the silence in the house deepened. घर में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा हो गया, एकदम शांति हो गई. His heart started beating. अब उसका दिल धड़कने लगा तेज. He remembered all the stories of devils. उसको भूत वाली कहानियां याद आने लगी, which he had all heard in his life. Right now, he often had his chum. What do you mean by chum? Means छोटा बच्चा, child. Money seen the devil in the banyan tree at the street end. स्ट्रीट एंड में एक बैनियन ट्री पे एक छोटा सा बच्चा उसने देखा था.
At what poor Muni Swami father who spat our blood because the devil, देखिए क्या है, क्या बता रहे हैं. And what about that poor मुनि स्वामी फादर, मुनि स्वामी के पापा जो बहुत ही ज्यादा लाइक ही जस्ट spat our blood because the devil near the river edge slapped his cheek when he saw the returning home late one night. जब वो एक दिन लेट आया था तो उसको क्या हुआ था, he just slapped his cheek. उसने डेविल ने मतलब भूत ने उसके मुंह पे चांटा लगाया था, slapped his cheek रिवर एज पे, और जिसमें ब्लड की छींटे भी आई थी. एंड दिस बिकॉज ही जस्ट केम वन नाइट लेट, लेट आया था, एंड सो ऑन. उसके थॉट्स जो है, उसके दिमाग में जो भी चल रहा था, इट वाज ऑल कंटिन्यूइंग कॉन्स्टेंटली. नाउ ही वाज फेंट विद फियर, वो डर के मारे बेहोश हो गया. A ray of light from the street lamp just strayed in and cast shadows on the wall. स्ट्रीट वाली लैंप की जो लाइट थी वो जब उसके कमरे में पड़ी, through the stillness all kind of noise reached his eyes. सारी की सारी आवाजें कान तक पहुंचने लगी. What is noise? Noise is the unwanted sound. नॉइज कभी भी वो साउंड नहीं होती जो हमको कानों को अच्छी लगती है, राइट. द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, क्लॉक बज रही है. द रसल ऑफ ट्रीज, ट्रीज का इधर उधर हवा में जो आवाज आ रही है. स्नोरिंग साउंड, कहीं पे कोई खराटे ले रहा है. सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, कुछ रात में इंसेक्ट्स की आवाज आती रहती है. वेग मीन्स विच इज नॉट क्लियर, राइट. ही कवर्ड हिमसेल्फ so completely that he could hardly breathe. अब उसने अपने आप को इतना ज्यादा कवर कर लिया था that he was not able to breathe. Every moment he expected the devil to come and carry him away. हर मोमेंट उसको ऐसा लग रहा था कि भूत अब आएगा और उसको उठा के ले जाएगा. There was the instant of his old friend in the fourth class. फोर्थ क्लास में भी ऐसा एक इंस्टेंट उसने देखा है, who suddenly disappeared, जो कि एकदम डिसअपियर हो गया था क्योंकि उसको भूत ले गया था. Was said to have been carried by a goes to Siam or Nepal right now. Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench. Bench के नीचे पहुंच गया. Crouched there, वहां पे लेट गया. Now it seems to be a much safer place, more compact and more reassuring. He thinks that this place seems to be a very comfortable, very safe, safest place. उसने अपनी eyes को बंद किया and encased himself in the blanket once again he just encompassed himself in the blanket. And unknown to himself fell asleep. और वो धीरे धीरे उसको नींद आने लगी. And in sleep was racked by nightmares. उसको डरावने सपने आने लगे. Mares means सपने आना. A tiger was chasing him. एक टाइगर उसका पीछा कर रहा था. And his feet it got struck into the ground. वो क्या हो गई, ग्राउंड में फंस गई. Now he desperately tried to escape. Again I'm saying you, escape means to run. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. बट उसकी फीट वहां से नहीं भाग रही थी. देन द टाइगर वाज एट बैक, और पीछे वो टाइगर था. and he could not and he could hear his claws scratching the ground. कि ग्राउंड्स में वो अपने पंजों से क्या कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है. and he is just scratching and then a light thud, और एकदम लाइट आई. स्वामी tried to open his arms, his eyes. स्वामी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश करी, बट की eyelids means उसकी जो eyelids हैं they were not able to open, और सपने कंटिन्यू आते ही रहे. and it threatened to continue forever, and Swami groaned in despair. Despair means a condition of no hope. कि कोई उसे बचाएगा नहीं. Right now, with a desperate effort, he opened his eyes. Somehow he just managed to open his eyes. He put his hand out to feel कि शायद ग्रैनी मेरे पास है, because उनकी presence उसकी habit थी, right? He only touched the wooden leg of the bench की उसने wooden leg पकड़ी हुई थी. and he only lonely stayed back to them, और वहां पे बहुत ही ज्यादा अकेला था. he sweated he sweat with fright, और वो डर के मारे स्वेट, पसीना आ रहा था उसको बहुत ज्यादा. And now, what was rustling? अब कौन सी आवाज आ रही है? He moved to the edge of the bench and stared to the darkness. और वो अंधेरे को देखने लगा. Something was moving down. कुछ ना कुछ तो नीचे चल रहा है. He lay gazing at in horror. और वो डर के मारे बहुत ही ज्यादा था, और उसका एंड वहां पे आ गया. He realized कि devil, भूत यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड वो उसको बाहर निकालेगा, उसको फाड़ देगा और लेके चला जाएगा. एंड व्हाई शुड ही वेट, व्हाई ही इज वेटिंग, व्हाई डोंट ही केम क्लोजर, और ही जस्ट क्रॉल फ्रॉम द अंडर द बेंच.
hugged with all his might and used his teeth कि वो उसको एक mortal weapon की तरह मार दे. Mortal means deadly, right? Now, आयो something has beaten me. कुछ ना कुछ तो किसी ने मुझे काट लिया है. It fourth and agonized. Agonized means बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में. Thundering cry एकदम ऐसा रोने वाला हो रहा है. Followed by a very tumbling and a falling amidst फर्नीचर की फर्नीचर के बीच में. Amidst means in between. और एक मूवमेंट में फादर जस्ट कुक पापा आए कुछ बना रहे हैं एंड सर्वेंट केम इन कैरिंग अ लाइट और सर्वेंट जो है कुछ लाइट लेकर आ रहा है ऑल थ्री ऑफ देम जस्ट फॉल ऑन द बगलर हु लेड एडमिट दी फर्नीचर फर्नीचर के बीच में वो गिर गया है विद अ ब्लीडिंग एंकल अब उसके एंकल पे भी चोट लगी है एंकल मीन्स हमारे पैर के ऊपर जो हड्डी रहती है हम उसको क्या बोलते हैं नाउ Congratulations were showered on Swami next day. Swami को congratulate सब लोग wish कर रहे थे. His classmates just look at him and respected. उसको बहुत respect दिया. And his teacher patted his back. Patted his back means थपथपाया. He encouraged. The headmaster said that it was true scout. कि ये क्या है? True scout. देखिए जब girls कोई भी अच्छा bravery वाला काम करती है तो हम उसको बोलते हैं guide, right? स्काउट्स एंड गाइड्स और जब बॉय कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर बॉयज एंड गाइड्स वर्ड इज यूज्ड फॉर गर्ल दैट इज व्हाई देयर इज अ टर्म scouts and guides right and Swami had beaten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district and police were grateful to him for that वो क्या कह रहे हैं कि स्वामी ने क्या किया है हैड बीटन की द फ्लैश ऑफ वन उसने एक हाउस ब्रेकर मतलब उसने एक बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी से किसी को बहुत ज्यादा मारा है और हमारा पुलिस जो है हमारे जो पुलिस है दे वर वेरी थैंकफुल टू हिम नाउ इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू जॉइन टू द पुलिस व्हेन यू विल जस्ट ग्रोन अप कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो पुलिस को क्यों नहीं ज्वाइन करते स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस certainly yes और सर आई विल जॉइन तो ही वॉज वेरी क्वाइट मेड अप हिज माइंड उसने अपना दिमाग बना लिया टू बी एन इंजन ड्राइवर अ रेलवे गार्ड और यू कैन से अ बस लेटर अ बस कंडक्टर लेटर वो इन तीनों चीजों में से एक चीज बनना चाहता था बट वेन हिज फादर रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब जब उसके पापा क्लब से वापस आए और उन्होंने पूछा वेयर इज द बॉय ही सेड ही इज ऑलरेडी फीलिंग asleep already he did not have a wink of sleep of the whole life last night में वो पूरी रात नहीं सो पाया था said the mother where is he sleeping वो कहाँ सो रहा है उसकी मॉम कह रही है in the usual place मदर के पास ही he just went to the bed at 7:30 7:30 ही वो बेड पे चला गया था sleeping beside his granny again he is just अपनी ग्रैनी के पास his father said no wonder he wanted to sleep he wanted to sleep before I could return home बहुत ही चालाक बच्चा है मेरे आने से पहले ही सो गया है मदर लॉस्ट हर टेम्पर मम्मी ने अपना का जो है अपना टेम्पर खो दिया एंड यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स ही इज सेइंग टू द फादर जहाँ वो सोना चाहता है प्लीज लेट हिम स्लीप यू नीड नॉट टू टेक एनी रिस्क इन दी लाइफ अगेन प्लीज कोई भी रिस्क मत लीजिए फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू अ चेंज कि पापा चेंज करने चले गए ऑल राइट जितना बिगाड़ना है उसको बिगाड़ लो स्पॉइल एज मच यू कैन डोंट ब्लेम टू मी आफ्टरवर्ड्स बाद में मुझे ब्लेम मत करना Swami was already listening to the whole conversation between his mother and his father from the under the blanket. From under the blanket means blanket के अंदर से वो सब सुन रहा था. Felt tremendously relieved to hear कि that his father was giving up on him. उसके father जो हैं उसके ऊपर give up कर रहे हैं उसको नहीं सुनाना चाह रहे हैं अलग से. So the story was a very usual story. You must have seen this situations in your real life also. Please go through this and learn all the word meanings in between that I have told you and please stay blessed and keep